اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 171 سے 73 تک۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَثَلُ مثال الَّذِينَ ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسے ہے کَمَثَلِ الَّذِي ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے يَنْعِقُ جو بلاتے رہیں بما لا یسمع لیکن وہ سنتے نہیں الا مگر دعاء و نداء وہ بلاتے بھی رہیں پکارتے بھی رہیں مگر وہ سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ صم بکم عمی فہم لا یعقلون اندھے گونگے بہرے ہیں اور وہ کچھ بھی سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کا اگر سلیس ترجمہ دیکھیں تو وہ ایسے ہے کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے شخص کو پکارے جو بلانے اور آواز دینے کے سوا اور کچھ نہ سنتا ہو۔ یہ بہرے گونگے اندھے ہیں تو یہ کچھ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا ہے نائک ینعقو نائک سے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہے کا اپنی بکریوں کو بار بار آواز دینا۔ جب بکریاں چر رہی ہوں، جو اس کا مالک ہے یعنی چرواہ ہے بار بار بکریوں کو ہانکتا ہے، ان کو بلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یا پھر ان کو ڈانٹتا بھی ہے، للکارتا بھی ہے۔ تو نائک کا مطلب ایسے ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تفسیریں دیکھیں تو اس آیت میں یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دین اسلام کی دعوت دیتے تھے اور وہ اس دعوت پر کان نہیں دھرتے اور نہ لبیک کہتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مویشیوں کو چرانے والا اپنی بکریوں اور اونٹوں کو آواز دے کر بار بار بلا رہا ہو اور وہ جانور اس کی صرف آواز تو سن رہے ہوں لیکن اس کی بات پر عمل نہ کر رہے ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہاں پر۔ پھر کفار اپنے باطل معبودوں کو جو پکارتے ہیں یا پھر ان کی مثال ایسے ہے، وہ صرف ان معبودوں کو یعنی جو انہوں نے بتوں کے خدا بنائے ہوئے ہیں ان کو جب وہ پکارتے ہیں تو اس کی مثال بھی ایسے ہے جیسے کوئی بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں کو بلا رہا ہو۔ تو آگے فرمایا سم بکم عمی، اس کی تفسیر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شروع میں۔ اندھے گونگے بہرے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی اندھے گونگے اور بہرے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو اس پر وہ اندھے گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، واشکروا للہ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اب امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیز کے سوا کسی اور چیز کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔
क्योंकि अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद करता है। वो पाकी फिर हमारे रहन सहन में हो, हमारे खाने पीने में हो, हमारे मामूलात ज़िंदगी में हो। तो अल्लाह इसी तरह जैसे खुद पाक है अल्लाह की ज़ात, वैसे ही पाकी को भी पसंद करता है। तो नबी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया था। सो फरमाया, ए रसूलो, पाक चीज़ें खाओ और नेक काम करो, बेशक मैं तुम्हारे कामों से बाखबर हूँ। और फरमाया, ए मुसलमानों, हमारी दी हुई पाक चीज़ों में से खाओ। फिर आपने ऐसे शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफ़र करता है, उसके बाल गुबार आलूद हैं, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहता है, ए रब, या रब, उसका खाना पीना हराम हो, उसका लिबास हराम हो, उसकी ग़िज़ा हराम हो, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। अब ये एक मिसाल, ये हदीस है, सही मुस्लिम की पहली जिल्द में मौजूद है, मैं वो रिवायत कर रही थी। इसका मतलब ये है, अगर कोई इंसान सारी ज़िंदगी का थक्का हारा और जब यानी वो निढाल हो, उसका जिस्म, उसके बाल गर्द आलूद हों, वो बिखरा टूटा हुआ अल्लाह की बारगाह में निदा करे या अल्लाह, तब अल्लाह उसकी नहीं सुनेगा। लेकिन क्योंकि ना उसका वो लिबास पाक है, ना वो जो खाता है वो पाक है, ना वो जो चीज़ें इकट्ठी करता है वो पाक हैं। क्योंकि जो बंदा हराम खाता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह ने वाज़े फरमाया है, कुलू मिन तय्यिबाती, उसमें से खाओ जो मैंने पाक रिज़्क दिया है, पाक खाने को चीज़ें अता की हैं, उसमें से खाओ। अब कोई बंदा जानबूझकर हराम खाएगा, फिर आकर कहे कि मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, तो कैसे सुनेगा अल्लाह, जब वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। जब अल्लाह ने कह दिया है कि मैंने हलाल चीज़ें रखी हैं, पाक चीज़ें रखी हैं, उन्हें खाओ, उन्हें इस्तेमाल करो, फिर वो किस चीज़ के रोने रोता है कि मेरी अल्लाह दुआ नहीं सुनता। वाज़े अल्फाज हैं कि जिस बंदे के पेट में एक लुकमा हराम का चला जाए, अल्लाह उसकी दुआ कभी भी कबूल नहीं करता। एक लुकमे की बात हो रही है सिर्फ। इसीलिए कोशिश किया करें, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि हलाल खाएं, हलाल कमाएं, हलाल पहने और हलाल चीज़ें अपने घरों में मुयस्सर करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक फिर करम भी करेगा। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, वशकुरू लिल्लाह, जब हलाल चीज़ें मैंने दी हैं उसमें से खा लो तो फिर मेरा शुक्र अदा करो। और ये शुक्र के बारे में मेरे ख्याल में हम जो है तीसरी या चौथी बार पढ़ रहे हैं कि ये शुक्र का जो जिक्र है ना, वो अल्लाह ने बार बार फरमाया है कि मेरा शुक्र करो, जैसे तुम्हारा दिल करे वैसे करो, लेकिन मेरा शुक्र हर हाल में करो, क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी अनगिनत लातदाद नेमतें दी हैं। अगर एक एक का भी शुक्र करने बैठो तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी शुक्र करते गुजर जाए। लेकिन फिर अल्लाह ने ये फरमाया, लेकिन उतना शुक्र करो जितना मेरा एहसान मानते हो। पहले तो हमें अल्लाह का पूरा एहसान मानना चाहिए। हमारा वजूद ही एक नेमत है, ये ना हो तो फिर क्या हो, ना हम हो ना हमारा वजूद हो तो फिर हमारे लिए दुनिया क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह जिस हाल में रखे वही हाल कबूल करना चाहिए। आगे अल्लाह ने शुक्र करने वालों के लिए एक शर्त रखी कि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम मेरी इबादत करने वाले होगे तब भी तुम मेरा शुक्र करने वाले होगे। अब नमाज भी शुक्र है। नमाज में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, रकू करके अल्लाह के आगे पूरे झुक कर, ज़मीन पे लिपट कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सजदा क्या है? शुक्र की एक सूरत है। सजदा शुक्र की एक बहुत बड़ी सूरत है। जो बंदा नमाजी है वो एक तरह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, क्योंकि नमाज में हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ़ ही बयान करते हैं ना, कि तमाम तारीफ़ें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताइन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र है, नमाज अदा करना। इसीलिए मैं कहती हूँ नमाज खुद भी पढ़ें, अपने घरों में भी नमाज वाला माहौल बनाएं। ऐसा माहौल खुद बनाएं कि बच्चे खुद उठकर नमाज पढ़ने वाले हों। इसके साथ कुरान की तिलावत भी शुक्र है।
कुरान को पढ़ना समझना भी अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। अगर आज हम ये ना पढ़ रहे होते तो हमें क्या पता था कि अल्लाह का रिज्क खाने के बाद शुक्र किया जाता है, हमें कैसे पता लगता। हमने तो जो दो चार बातें सुन रखी हैं ना, वही पढ़ी सुनी हुई हैं, जहनों में रटी हुई हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन इतनी तफसील तो हमें कुरान बता रहा है ना कि जब तुम मेरी दी हुई हलाल और पाक चीज़ें खाओ फिर मेरा शुक्र करो। और वो कैसे करोगे? अगर तुम मेरी इबादत करने वाले होगे तो ये अल्लाह ने सूरतें रखी हैं। उसके बाद अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा, के बेशक मैंने हराम कर दिया है अलैकुम तुम पर, अलमैतता मुर्दा। क्या हराम कर दिया है? मुर्दा, वद्दमा मुर्दार, खून, व लहमल खिंजीरी, खंजीर का गोश्त। मुर्दार खून और खिंजीर का गोश्त मैंने तुम पर हराम करार दे दिया है। व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और ऐसा जानवर जिसको तुम गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करो। यानी कोई ऐसा जानवर जिसको ज़िबा तो किया जाए लेकिन तकबीर यानी अल्लाह का नाम उस पर ना लिया जाए, तो वो भी मैंने तुम पर हराम किया है। फमनित्तुर्रा गैरा, और जो क्या करे, मेरी नाफरमानी करे और हद से बढ़ने वाला ना हो, जो मेरी नाफरमानी और हद से बढ़ने वाला ना हो, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर मेरी तरफ से कोई गुनाह नहीं है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक मैं अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। अब पीछे अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि हम जो हैं पाक चीज़ें खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और फिर अल्लाह की इबादत करें। रब्ते आयत है, जहाँ जन्नत है वहाँ जन्नम है, जहाँ अजाब है तो फिर वहाँ खुशखबरी भी है, तो जहाँ हलाल है वहाँ हराम भी है। तो पहले हलाल का जिक्र फरमाया, हुक्म दिया कि खाओ, फिर जिन चीज़ों से मन्ना कर रहे हैं जो हराम है उनका तस्करा कर दिया। क्या फरमाया कि मैंने, अल्लाह ने तुम पर जिसका खाना हराम किया है वो सिर्फ मुर्दार खून, खंजीर का गोश्त और वो जानवर हैं जिस पर ज़िब्बा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। सो जो शख्स मजबूर हो जाए जबकि वो नाफरमानी करने वाला और हद से बढ़ने वाला ना हो, तो अल्लाह की तरफ से उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बेहद मेहरबान है, यानी उसके रहम की कोई हद ही नहीं है। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ मैता आया, इसका मतलब होता है मुर्दार। क्या मतलब होता है? मुर्दार, यानी ज़िब्बा किए वाले जानवरों में से जो जानवर बग़ैर ज़िब्बा के अपनी तिब्बी मौत मर जाए। यानी कोई जानवर, हमारे पास जानवरों का रेवड़ है, उसमें से कोई एक जानवर, कोई अल्लाह की तरफ से बीमारी, कोई भी मसला हो सकता है, हम उसको ज़िब्बा नहीं कर सके, हम उसका इलाज कराने लगे रहे, लेकिन फिर वो अपनी तिब्बी मौत मर गया, तो हम उसको खा नहीं सकते क्योंकि वो अब हराम हो गया है। हम उसे खा किस सूरत में सकते थे? अगर हम उस पर अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िब्बा कर देते, तो फिर उसका गोश्त हम सदका भी कर सकते थे, खैरात भी कर सकते थे, खुद भी खा सकते थे। लेकिन चूंकि वो तिब्बी मौत यानी अपनी मौत खुद मरा है, तो अब वो हमारे लिए क्या है? हराम है। मैता, मरा हुआ जानवर हराम है हमारे लिए। बेशक वैसे वो हलाल है, ठीक है, वैसे वो, जैसे मिसाल के तौर पर आप गाय भैंस की ले लें, वो अपनी तिब्बी मौत मर जाए तो हमारे लिए उसका गोश्त हराम हो जाएगा। वैसे तो गाय और ये जो भैंसें हैं इनका गोश्त हमारे लिए हलाल है, पाक है, हम खा सकते हैं, कुर्बानी भी होती है। लेकिन तिब्बी मौत मरने पर यानी गैरुल्लाह के नाम पर अगर वो हम उनको ज़िब्बा करें तब भी वो हमारे लिए हराम है, या फिर ऐसी सूरत जिसमें वो अपनी मौत खुद मर जाए तब भी वो हराम है। फिर आगे एक और लफ्ज़ आया यहाँ पर, लहमल खिंजीरी, खिंजीर का गोश्त। खंजीर एक जानवर है, वो किसी भी सूरत में हलाल है क्योंकि यहाँ पर उसका ख़ास जिक्र है, खिंजीर। तो हराम खाने का वबाल भी होता है। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ के सिवा और किसी चीज़ को कबूल करने वाला नहीं है।
اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ ہم سے پہلے جتنے انبیاء سابقین تھے ان کو حکم ملے کہ وہ حلال چیزیں کھائیں اور میری یعنی اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ نے مسلمانوں کو پکار کر یا ایھا الذین آمنو، اس سے پہلی آیت میں آمنو کا لفظ آیا نا کہ اے ایمان والو حلال کھاؤ اور پاک کھاؤ، پھر اگلی میں اسی آیت کے ربط میں فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں میں نے حرام کی ہیں۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ صرف وہی چیزیں کھاؤ جو میں نے تمہارے لیے پاک کر دی۔ اگر تم ناپاک چیزیں اپنے پیٹ اپنے بطن میں لے کر جاؤ گے تو میں تمہاری دعا نہیں سنوں گا، اور انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ یہ تو ہم بندے ہیں، وعدہ کر کے بھول جائیں، اگلا جب یاد دلائے تو ہم کہیں او اچھا یہ وعدہ، یہ تو ہماری نیچر یہ ہے نا، لیکن اللہ اپنے وعدے کو نہ بھولتا ہے نہ بھولواتا ہے۔ جب اللہ نے کہا ہے جو بندہ حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے گا میں اس کی دعا نہیں سنوں گا، تو یقیناً اللہ اس کی دعا نہیں سنے گا۔ اور اللہ نے فرمایا جو حلال کھائے، میرے احکام پر چلے، نیک اعمال کرے، وہ مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں گا۔ وہ آدھی رات کو پکارے، آدھے دن کو پکارے، فجر کے وقت پکارے، عشاء کے وقت پکارے، جس وقت مجھے ندا دے گا میں اللہ اس کے لیے حاضر رہوں گا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں بے شک بہت ہی بخشنے والا اور نہایت بے حد رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ جب بھی اپنے عذاب یا کوئی ایسی بات ہمیں بتاتے ہیں، یعنی جو خلاف معمول ہو، یعنی جس میں حرام کا ذکر ہو یا ہمارے لیے کوئی بری خبر ہو، بری بات ہو، اس کے ساتھ ہی آخر میں اللہ اپنی شان بتا دیتا ہے کہ میں کون ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ صرف اللہ نہیں، میری پھر صفتیں بھی ہیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا میں بہت ہی بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہوں، جو میرے در پہ آئے گا میں اسے بخش بھی دوں گا اور اس پر رحم بھی کر دوں گا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 174 آیت ہوگی نا، ہاں جی۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الی النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ اب آیت نمبر 174 ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے ان الذین، بے شک جن لوگوں نے یکتمون چھپایا یا پھر چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو نازل کیا اتارا اللہ نے، من الکتاب کتاب میں یعنی قرآن پاک میں، اس سے مراد پہلی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ میشترون اور تھوڑا سا معاوضہ لیا یا پھر خریدا یا نفع حاصل کیا، ثمنن قلیلا صرف تھوڑا سا، یعنی تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں انہوں نے میری آیات کو چھپایا۔ اولئک وہی لوگ ما یأکلون جو کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے بطنوں کے اندر، الی النار آگ، کیا کھاتے ہیں؟ آگ۔ ولا یکلمہم اللہ اور اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گا، یوم القیامت قیامت والے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہی ہیں
کہ جو कुछ मैंने किताबों में नाजिल किया, जिन्होंने वो छुपाया उन्होंने अपने पेटों में आग को भरा। अब इससे मुराद यहूदी और नसारा भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को छुपाया था। ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं तौरात और ज़बूर में, जब उनसे सवाल किए जाते थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या पढ़ा है, तो वो साफ इनकार कर देते थे, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा। हालांकि अल्लाह ने तौरात, ज़बूर, इंजील में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात पहले ही बयान कर दी थी। तो अल्लाह फरमा रहा है कि वो लोग अपने पेटों में महज आग भर रहे हैं। फिर क्या है, क़यामत के दिन मैं उनसे ना तो कोई कलाम करूँगा और ना उनके गुनाहों को बख्शूँगा। अब जो जन्नती लोग हैं उनकी आखिरी हद तो यही होगी ना कि जब अल्लाह उनसे कलाम कर लेगा। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं जन्नतियों के बारे में कि जन्नती जन्नत में जाने के बाद भी बेकरार होंगे। अल्लाह उनसे पूछेगा अब क्या चाहिए, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिल गई, सब तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक है। तब वो कहेंगे हम ए अल्लाह तेरा दीदार करना चाहते हैं, तुझे देखकर तुझसे कलाम करना चाहते हैं। तब अल्लाह उनको अपना दीदार कराएगा। ये उन जन्नतियों की आखिरी हद होगी। वहाँ उनके दिल सुकून पा जाएंगे और वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी में ज़िंदगी जिएंगे। तो अल्लाह फरमा रहे मैं ऐसे लोगों से जो हक को छुपाते हैं, हालांकि मैं किताब में उस हक को जाहिर कर चुका हूँ, क़यामत वाले दिन ना तो मैं उनसे हम कलाम हूँगा, ना उनके गुनाहों से उनको पाक करूँगा, और उनके लिए ऐसा दर्दनाक अजाब है, फिर अजाब भी दायमी अजाब है जिसमें वो हमेशा गलते सड़ते रहेंगे। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा वल अज़ाब बिलमग़फ़िरा, ये वही लोग हैं जिन्होंने अश्तरा खरीदा, वुद्दलालता बिलहुदा दलालत गुमराही को किसके बदले, बिलहुदा हिदायत के बदले, वल अज़ाब और अजाब को खरीदा, बिलमग़फ़िरा मग़फ़रत के बदले। फमा अस्बरहुम अलन्नार, और वो आग पर किस कदर सब्र करने वाले हैं, और वो सब्र नहीं करेंगे, फिर उनकी चीखें होंगी, फिर वो धाड़े मार के रोएंगे कि अब हमें ये अजाब क्यों दिया जा रहा है। हालांकि कुरान फरमा रहा है जिन्होंने गुमराही खुद खरीदी है हिदायत के बदले, हिदायत सामने थी उसको जानबूझ के छोड़कर गुमराही को पकड़ा, अजाब को पकड़ा किसको, मगफरत के बदले। अल्लाह ने फरमाया है ना जो बंदा नेक अमाल करेगा, मेरी राह पर चलेगा, तो मैं उससे अजाब ख़त्म करके उसकी मगफरत कर दूंगा। ये बात वो लोग जानते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी जानबूझकर उन्होंने दलदल को खरीदा, गुमराही को अपना दोस्त बनाया, हम सफ़र बनाया। फिर जब उन्हें अजाब आएगा तो वो किस कदर उस पर सब्र कर सकते हैं। थोड़ी सी आग यहाँ लग जाए तो हमारी चीखें होती हैं, और वो जो पूरे जिस्म आग में होंगे तो उनका क्या हाल होगा। ज़ालिका बि अन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये इसलिए है कि अल्लाह ने हक़ के साथ यानी सच्चाई के साथ किताब को नाजिल किया। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबी, और बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफ किया, लफ़ी शिक़ाक़िम बाईद, वो बहुत ज़्यादा मुखालफत में हैं कि अब अल्लाह की भेजी हुई किताब में भी वो इख्तलाफ करते थे। ये यहूद और नसारा के बारे में आयात हैं कि वो तौरात और ज़बूर रद्द बदल का भी आप लोग मामला पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी के हुक्म रहने दिए, बाकी हुक्म मनसूख कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब तो उनके पास जो तौरात और ज़बूर की किताबें मौजूद हैं वो असली हालत में भी नहीं हैं। तो अल्लाह उन्हीं के बारे में फरमा रहा है जो अल्लाह ने हक़ के साथ नाजिल किया, इन्होंने उन्हीं में इख्तलाफ किया। इख्तलाफ का मतलब यह कि अपनी बात रखी, अल्लाह की बात को हटा दिया, या फिर उन्हें अल्लाह की बात पसंद नहीं आई तो वहाँ पर अपनी बात लिख दी। तो बेशक वो बहुत ज़्यादा मुखालफत में है। मुखालफत से मुराद ये है कि सख्ती में है।
اور وہ سختی اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بندہ اللہ کے حکم میں اختلاف کرے اس کا کیا حال ہوگا، یعنی اس نے کس قدر گمراہی کو خریدا ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں، ایسے ہونی چاہیے تھی، یہ بات ایسے تو لکھی بھی نہیں ہوئی، ایسے لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کے لفظوں میں وہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کے لفظوں میں جو اللہ وحی کے ذریعے بھیجتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ بہت ہی اختلاف میں ہیں، مشکل میں ہیں، تنگی میں ہیں، اور ان کو اس کا اندازہ قیامت والے دن ہوگا، قیامت والے دن ہوگا، کیونکہ اب بھی وہ اپنی ڈھیل میں ہیں اور اسی میں خوش ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ آیت نمبر 177 ہے۔ ربط آیت دیکھ لیں کہ پیچھے اللہ نے کافروں کے بارے میں ذکر کیا، ان کی گمراہی اور عذاب کا بھی ذکر کیا۔ اب مومن اور مسلمان بندے پریشان نہ ہو جائیں، اللہ نے پھر ان کے لیے خوشخبریاں لکھ دی۔ خوشخبریوں کے ساتھ اللہ نے متقی لوگوں کی صفات کو کھول کھول کر بیان فرمایا۔ یہ صفت جس بندے میں ہوگی وہ متقی ہے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب میں صفتیں گنواتی ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے دیکھ لیں لیس البر، اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ لیسا ہرگز کے معنی میں آتا ہے کہ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر کر کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ولاکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمنا، جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری آخرت پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتابی کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآتی المال اور جو مال ہم نے دیا، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، ذوی القربی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے، والیتامی یتیموں کو دے، والمساکین مسکینوں کو دے، وابن السبیل اور کس کو دے، راہ گیروں کو، مسافروں کو دے، والسائلین سوال کرنے والوں کو دے، وفی الرقاب اور غلاموں کو جن کی گردنیں آزاد نہ ہوں، وأقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآتی الزکاۃ زکوٰۃ ادا کرے، والموفون اور پورا کرے بعہدہم اپنے وعدے کو، اذ عاہدوا جب وہ وعدہ لے لے، والصابرین اور صبر کرے، فی البأساء والضراء تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی، وحین الباس اور مشقت میں بھی، اولئک الذین صدقوا اور یہی سچے لوگ ہیں، واولئک ھم المتقون اور یہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اب یہ اللہ نے جو متقی لوگ ہیں ان کی صفات بیان کر دی۔ اب جو یہودی تھے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے، اور جو نصارہ عیسائی تھے وہ جو ہے مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے صرف وہ نماز تو پڑھ لیتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور بات پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا میرے نزدیک نیکی یہ نہیں ہے کہ تم صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں تو اس کو نیکی مانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اس سے پہلے ایک مسئلہ واضح ہو گیا، جو بندہ نمازی ہو باقی حقوق ادا نہ کرتا ہو اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے۔ جو صرف سجدہ تو کرتا ہو، بے شک تہجد بھی پڑھتا ہو،
फिर कहे मैं तो बड़ा नेक हूँ, बड़ा परहेजगार हूँ। कुरान के फैसले के मुताबिक वो तो मुत्तकी है ही नहीं। कुरान कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रही। ये वाजे वाजे लिखा हुआ है कि मेरे नज़दीक नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह मशरिक और मगरिब की तरफ फेर लो और खड़े हो जाओ और कहो या अल्लाह हम मुत्तकी परहेजगार आ गए, अब हमारी बात सुने। अल्लाह कह रहा है मेरे नज़दीक नेकी क्या है, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है कि तुम पहले अल्लाह पर ईमान लेकर आओ, फिर आखिरत पर ईमान लेकर आओ, फिर फरिश्तों पर ईमान लेकर आओ, फिर मेरी किताबों पर, फिर मेरे नबियों पर, तमाम नबियों पर ईमान लेकर आओ। फिर तुम क्या करो, मैंने तुम्हें जो माल अता किया है, हालांकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, यहाँ पर वाज़े लिखा हुआ है अला हुब्बे ही, उसकी मोहब्बत के बावजूद। माल सबको प्यारा होता है, थोड़ा सा हो ज़्यादा हो, सबको माल बड़ा प्यारा होता है। तो अल्लाह कह रहा है जो मेरा मुत्तकी बंदा होगा उस माल की मोहब्बत के बावजूद क्या करेगा, पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को देखे, उनमें कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, पहले उनको दे। उसके बाद फिर कोई यतीम आए तो उसको देखे, फिर मस्कीन को, फिर वब्निस सबील, कोई राह गुज़र आया हुआ है, कोई मुसाफिर है लेकिन उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया नहीं है, अगर आप कर सकते हैं उसकी मदद तो उसकी मदद करें। फिर अल्लाह ने फरमाया साइलीना, सवाल करने वाले। तो ये इंशाल्लाह मैं बताती हूँ कि सवाल करने वालों से कौन मुराद हैं। तो अब अल्लाह पर ईमान लाना क्या होता है? अल्लाह पर ईमान लाना ये है कि अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह अकेला यकता इकलौता हमारा खालिक मालिक राजिक सब कुछ है, हर बंदे का ईमान है। तो अल्लाह कह रहा है मुझ पर मुकम्मल ईमान ले आओ, हर चीज़ और हर बात में कहीं ये शक में ना आ जाओ कि अब इसमें अल्लाह की क्या सिफत है, इसमें अल्लाह की क्या शान है, यानी अल्लाह के बारे में तुम मुकम्मल ईमान वाले हो, तुम्हारे जहन में अल्लाह के लिए कोई सवाल ना हो। तो ये अल्लाह पर ईमान है। आखिरत पर ईमान कि एक दिन हमने मरना है, अल्लाह के रूबरू खड़े होना है, दुनिया में जो अमाल कर रहे हैं इनका जवाब अल्लाह को देना है। हमारी ज़िंदगी क्या है, अल्लाह की अमानत है, उसने हर हाल में वापस लेनी ही लेनी है। और फरिश्तों पर ईमान के तमाम फरिश्ते जो हैं वो नूर से पैदा किए गए हैं, ये हमारा ईमान होना चाहिए। फिर उसमें कुछ मुकर्रम भी हैं और कुछ वो भी हैं जिनको अल्लाह ने ड्यूटीज़ दी हुई हैं, जो अल्लाह के कहने पर कुछ बारिश बरसाते हैं, कुछ हमें रिस्क मुहैया करते हैं, कुछ अल्लाह के कहने पर मौत यानी हमारी ये जो रूह है इसको लेने आते हैं। फिर कुछ वो हैं यानी उनमें से जो अल्लाह के हुक्म अहकामात को नबियों तक भी पहुंचाते हैं। फिर अल्लाह ने कहा मेरी किताबों पर यानी तौरात ज़बूर अंजील कुरान मजीद चारों इल्हामी किताबों पर ईमान लेकर आओ। अब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कुरान पर मुकम्मल यकीन रखता हो कहे मैं तौरात ज़बूर को तो मानता ही नहीं हूँ, वो अल्लाह की इल्हामी किताब है ही नहीं, फिर उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह की हर किताब हर सहीफे पर हमारा ईमान होना चाहिए, बेशक हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वन नबीयीना, मेरे कमो बेश 1,24,000 अम्बिया सब पर ईमान लेकर आओ। और फिर मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन सब से अफजल व आला मानो। ये नबियों पर ईमान है। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया अब जो नमाज है ना वो हमारी पाकीज़गी है। नमाज क्या है? हमारे जिस्म को पाक करती है। और ज़कात क्या है? वो हमारे माल को पाक करता है। जिस माल पर 1 साल गुजर गया हो उसमें से 40वां हिस्सा हम निकालेंगे। फिर अल्लाह ने फरमाया उसके बाद उसको दो कहाँ कहाँ, ये भी अल्लाह ने फरमा दिया ज़विल कुर्बा, पहले करीबी गरीब ज़रूरतमंद रिश्तेदारों को, फिर यतीमों को। अगर पहले रिश्तेदारों में देखो वहाँ कोई यतीम है ज़रूरतमंद है तो उसको दो, फिर मोहल्ले में देखो कोई यतीम है कोई मस्कीन है। इस तरह अल्लाह ने दर्जे रखे हैं कि इस तरह जो है तुम अपने दिए जो मैंने माल दिया है उसमें से हिस्सा निकाल के खैरात करोगे और ज़कात दोगे। अब मुत्तकीन लोगों के लिए ये सिफ़त है, मैं पढ़ रही थी अभी कि एक तो जो अल्लाह ने लागू कर दिया है
फ़र्ज़ है हम पर चीज़, वो तो हमने हर हाल में करनी है, वो हर बंदा करेगा, आम है, ख़ास है, मुत्तकी है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, हर बंदे ने वो काम करना है। अब जो चीज़ फ़र्ज़ के अलावा है वो जो बंदा करेगा वो मुत्तकी होगा। मिसाल मैं ऐसे देती हूँ इसकी, मिसाल के तौर पर नमाज हर बंदे पर फ़र्ज़ है, हर बंदे ने पढ़नी है। अब जो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए नवाफिल पढ़ेगा वो मुत्तकी होगा, ठीक है। यानी जो तहज्जुद पढ़ेगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को अपना बनाने के लिए, अल्लाह का बनने के लिए, तो वो मुत्तकी होगा ना। इसी तरह जो हकूक़ अल्लाह ने दिए हैं वो तो हर बंदे ने पूरे करने हैं, अब उनसे बढ़कर जो करेगा फिर वो मुत्तकी होगा। रोज़े माह रमज़ान के फ़र्ज़ हैं, हर बंदे ने रखने हैं, किसी को छूट, लेकिन जो बंदा फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 13वीं 14वीं 15वीं का रोज़ा रखेगा फिर वो मुत्तकी होगा। नफली रोज़ा जो रखेगा, फ़र्ज़ तो रखेगा, जो फिर नफली रखेगा फिर वो मुत्तकी होगा। बात समझ आ रही है? तो ये मुत्तकियों की सिफ़ात हैं। फिर अल्लाह ने उनकी ज़कात, फिर अल्लाह ने फरमाया जब वो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं, वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं, फिर वो हर तंगी, हर मुश्किल, हर खुशहाली, हर कुशादगी में सब्र से काम लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए कोई तंगी आ गई तो ढिंढोरे पीट दिए, नहीं नहीं नहीं, उन लोगों की शान है कि वो तंगी में भी, बल्कि हदीस के मुताबिक, मफहूम के मुताबिक तंगी में उनको ज़्यादा सब्र करने वाला पाओगे बानिस्बत खुशी में। फिर क्या है कि वही लोग सच्चे हैं और यही मुत्तकी हैं। अब साइलीन कौन होते हैं? बाकी तो तकरीबन हर कोई बंदा जानता है, करीबी रिश्तेदार हो गए, यतीम, मस्कीन और जो राह गुज़र आते हैं। इसके अलावा एक लफ्ज़ आया है साइलीन, मांगने वाले। इसका सवाल एक बार पहले भी मुझसे हुआ था कि बाजी पता नहीं लगता कि किस साइल को देना चाहिए और किस साइल को, आज उसका जवाब हम देखेंगे। साइलीन साइल की जमा है और साइल क्या कहते हैं? बिला ज़रूरत सवाल करना शरअन हराम है। कोई बंदा सेहतमंद है, उसका जिस्म अज़ा बिल्कुल सलामत है, वो इस काबिल है कि वो कोई काम कर सकता है और अपनी रोज़ी कमा सकता है, उसके बावजूद वो लोगों से सवाल करता है तो ये शरअन हराम है, शरअन हराम है। इमाम मुस्लिम रवायत करते हैं, सही मुस्लिम की पहली जिल्द की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से सवाल करता है, माल बढ़ाने के लिए, तो वो अंगारों का सवाल करता है, खा वो कम हो या ज़्यादा हो, यानी उसका सवाल जितना बड़ा होगा अंगारे उसके लिए उतने ज़्यादा होंगे। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह फरमाया, कोई शख्स अपने ऊपर सवाल करने का दरवाज़ा नहीं खोलता मगर ये कि अल्लाह फिर उसके ऊपर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देता है। अब कोई बंदा जहन में सोच रहा हो कि मैं मांग कर अपनी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ, तो अल्लाह उसके लिए फ़क्र यानी तंगी के दरवाज़े खोल देता है कि तूने सोचा है तो अब फिर मांगता रहे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हम नहीं दे सकते ऐसे बंदे को जो ज़रूरतमंद ना हो और आकर हमसे सवाल करे, उसको देना भी जायज़ नहीं है। बात समझ आ रही है? आप पहले उसको देखेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं अल्लाह पाक ने उनको माजूरी दी होती है, वो जो है नहीं कर सकते, हो सकता है किसी की टांग का हो, बाजू का हो, ऐसे लोगों को हम दे सकते हैं क्योंकि वो इस आहिल नहीं है कि वो कमाए अपने लिए। हो सकता है उनके घर वालों ने उनको बाहर इसीलिए बिठाया हो कि ये मांग कर लेकर आएंगे, और अमूमन मैंने ऐसे केसेस देखे भी हैं। तो ऐसे लोगों को तो देना ठीक है, आप उन्हें अपना सदका दे सकते हैं, खैरात दे सकते हैं, अल्लाह के नाम पर भी उन्हें जितनी आपकी इस्तात है दे दें। लेकिन जैसे औरतें होती हैं और हम कहीं चौक पर खड़े हों, 8-10 औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, हालांकि वैसे वो ठीक ठाक होती हैं, बोल भी माशाल्लाह, अगर ना दें तो फिर गालियाँ भी अच्छी खासी सुनाती हैं, तो ऐसों को देना सही नहीं है।
کہتے ہیں کوئی آپ سے مچھلی مانگے اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیں، اس کی پوری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسے کام کو جانتے ہیں جو وہ بندہ کر سکتا ہے، یا آپ کو خود بندے کی ضرورت ہے کام کرانے کے لیے، یا آپ کو کسی نے کہا ہوا ہے، تو آپ اس بندے کو وہاں سجیسٹ کر دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی زیادہ آسان ہو جائے۔ یعنی آپ مچھلی نہ دیں، مچھلی پکڑنا سکھا دیں تو اس بندے کی زندگی بھی آسان ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ اور یہاں تک آج ہمارا سبق تھا، آیت نمبر 177 تک، اور دوسرے پارے کا ماشاءاللہ ربع بھی کروس ہو چکا ہے، اس سے اگلے رکوع پہ چلے گئے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا